पर आई सी आवाज से बोले गुरु गोविंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोविंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोविंद, उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोविंद, लो आओ तन खाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दें, हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादे का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो होना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी भी नहीं करना, लो जाओ सदारो तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें करतार को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उबारो तुम्हें करतार को सौंपा, वाहिगुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो जात जामे शहादत तुम्हें बख्शे, बेटा हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताकि धर्म की चले नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं सब खुलद में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बर्छी तुम्हें खाते हुए देखें, तुमको भी इसी राह में कुर्बान करेंगे, सच शुक्र है हम भी कभी खंजर से मरेंगे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। गुरु रूप साध संगत जीओ, आओ दसवें पातशाह वालों बख्शी हुई फतेह दी सांझ पाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज का दिन जिहड़ा तीजा दिन है, इन्हां मरसियां नूं आप जी तक पहुंचाउण दा जगह है कोमल लाइब्रेरी, ते चैनल भी अज कोमल लाइब्रेरी है, उहदे नाल नाल विरसा चैनल, ते क्योंकि साडे कोल यही एक प्लेटफॉर्म है जिथे आके सानू मौके मिलते ने कि असीं अपनी इस रिवायतां नूं, ट्रैडिशन नूं, इतिहास नूं, साखियां नूं ते गुरु के लालां दीआं शोभावां नूं आप जी तक पहुंचा सकीए। असीं पहला जिहड़ा तुहाडे नाल मरसिया पढ़ रहे सी ਉਹ ਸੀ शहीदान ए वफा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 50 ਮਰਸੀਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਨ ਵਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸੌਗਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਅੱਜ
ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਸੀਆ ਹੈ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਮ ਹੋਏ ਚਮਕੌਰ ਮੇ ਸਿੰਘੂ ਕੇ ਉਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਥੇ ਸਭ ਗੈਸ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਰੇ ਐ ਬੀਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਸੈਲ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਮੂਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸਾ और पूरा बीरस नजर आ रहा सी। आंखों से निकलते थे दलेरू के शरारे, ते अखियां दे विचों ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾਰੇ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਰਜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। सतगुर के सिवा और गजबनाक थे सारे। इको पातशाह सी जिहदे चेहरे मूहरे पर कोई भी परेशानी ते गुस्से का भाव नहीं सी। वो सन धन कलगीधर पिता जिन्हां ने पहला चांदनी चौक विच अपने पिता की शहादत दी, उहदे बाद हुण परिवार की शहादत देनी है ते अपने बच्चों नालों अपने खालसे नालों विछड़ के एक रत्ती पर भी उन्होंने चेहरा जिहड़ा है वो गुस्से दे विच नहीं ने, वो पुर सकून पुर आमोद शांति दे विच रहे ने। गुस्से से नजर जाती थी अफवाज अदू पर। अफवाज अदू तो भाव है फौज का जिहड़ा प्लूरल है उन्होंने अफवाज कहते हैं। फौज अफवाज उर्दू फारसी दे विच ते अदू तो भाव है दुश्मन। ते जिहड़े सिंह जदों फौजां वल देखदे सन दुश्मन दीयां फौजां वल ते ऐ पूरे बीरसीए होकर देखते सन। उन्होंने तेगां दे विच अपने आप जान आ जाती सी। तेगे से निगाह पड़ती थी दुश्मन के गलू पर, ते उन्होंने हत्थां विच तेगां फड़ियां होईयां सन ते दुश्मन दी जिहड़ी गर्दन सी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ अंधेरी रात दे विच बिल्कुल ऐ साफ दिस रही सी जिवें दिन की रोशनी दे विच दिसदी है। जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, जदों दूरों नजर पैंदी सी ते दरिया दा किनारा नजर आउण लग पैंदा सी। किहड़े दरिया दा? सरसा नदी दा। डूबे हुए सरसा में प्यारे नजर आए। जिहड़े बाकी साथी सन उस सरसा नदी दे विच अद्धे रुड़ गए अद्धे डुब गए। ते सिखां दा जिहड़ा ग्रंथ सी विद्या सागर ग्रंथ जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तैयार करवाया सी कवियां कोलों, वो भी रुड़ गया उस जदों हड़ आया। ते कई बच्चे बुजुर्ग मातावां उस हड़ दे विच सिंह कई रुड़ गए जिहड़े दरिया नूं पार ना कर सके। सरसा पूरे अपने उफान ते सी उस समय ते सिंघां नूं ओ डुबदे हुए सिंह भी नजर आ रहे सन। ये देख के बिगड़े हुए सारे नजर आए। जदों सिखां ने नज़ारा देखिया ओ बड़े बेचैन जे होए, क्योंकि अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। इस करके सिखां नूं भी बहुत अफसोस सी। बिफरे हुए सतगुर के दलारे नजर आए। ते एवें लग रहा सी कि जिहड़े गुरु पातशाह दे पुत्र सन दुलारे जिन्हां नूं गुरु आप प्यार करदे सन वो पूरे तिल मिला के उठ रहे सन ते वो पूरे रोह दे विच आ गए सन। कहते थे इजाजत नहीं है हमें रन की। वो ये कहते सन कि सानू तां गुरु पातशाह ने कहा कि हुण रन दे विच नहीं जाना जे, अजे मैदान जंग विच जाण दा समां नहीं है, नहीं तो मट्टी तक उड़ा सकते हैं दुश्मन के चमन की। जे इजाजत होवे ते मिट्टी तक उड़ा दईए जिहड़ा दुश्मन दा बाग है, जिहड़ी दुश्मन दी फौज है। पर पातशाह ने क्यों रोकिया सी? इहदे पिछे भी कोई दैवी नियम काम कर रहा सी। तूफान ज़दा दरिया को अभी पार करेंगे। ये जिहड़ा दरिया है इहनूं हुणे पार करांगे असीं। ठोकर से हर एक मौज को हमवार करेंगे। जिहड़ियां लहरां ने दरिया दी उठ रहीआं ने पूरे उफान दे विच, क्योंकि जो सैलाब आता है वो हर एक चीज नूं नहा के हर एक चीज नूं छो के निकल जाता है। ते कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने, कुछ
बूटे या पत्तियां ऐसियां होंदियां ने ਜਿਹੜੇ उस दरिया के उफान के सामने अपने आप पूरी तरह ऐ खड़ा कर दिंदियां ने कि वो सैलाब भी उन्होंने छू नहीं सकता, पर फिर भी उन्होंने छू के निकल जाता है, पर उन्होंने जड़ों नहीं पड़ सकता। कोई हरिया बूट रहोरी, कोई तो है जिहड़ा जिंदा रह जाता है। इस तरह सिखा ने कहा कि असीं हर एक उस लहर का मुकाबला करांगे जिहड़ी अपनी पूरे जोबन ते है, बद अहद सितमगारों से पैकार करेंगे। जिन्होंने खालसे ते सितम ढाया है, मजलूमा ते सितम ढाया है, खालसा ओदे उपर पूरा जंग करेगा ओदे नाल। हम दोनों तो 10 लाख को फिनार करेंगे। असी दोवें तो 10 लाख फौजा नूं बर्बाद कर देवांगे। फिनार तो भावें बर्बाद कर देवांगे। दादी है किधर, मां है किधर, भाई कहां है। हुणे वड्डे साहिबजादे अपने आप विच गुफ्तगू कर रहे ने कि साडी दादी माता कित्थे है। साडियां मातावां, उन्हां दी उम्र भी तां 17-19 साल दी सी दोवां दी, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ कि दादी है किधर, मां है किधर, भाई कहां है। आंखों से कई खालसे प्यारे भी निहा नहीं है। निहा है कि कई जेडे साडे प्यारे सिख सन, जेडे साडे अनंदपुर साहिब दे किले अंदर गतका खेडदे सन, सानू घोड़सवारी सिखाउंदे सन, साडे नाल लंगर दी सेवा करदे सन, सानू कीर्तन सिखाउंदे सन, राग विद्या सिखाउंदे सन, सानू होर चीज़ां सिखाउंदे सन, वो भी तो नजर नहीं आ रहे। ते अद्धा परिवार ते साडा विछड़ गया। धोखा दिया हर सिंह को पैमा शिकनू ने। इन्हां बेईमानां ने अपने वादे तो मुकर के हर एक सिख नूं धोखा दिता है। बेमेहरू ने, बेधर्मू ने, ईमान शिकनू ने, इन्हां बेईमानां ने जिन्हां दा कोई ईमान नहीं है। ईमान शिकन तो भाव है ईमान नूं तोड़न वाला, बुत शिकन तो भाव है जिहड़ा बुत नूं तोड़दा है। इन्होंने सानू धोखा दिता है। जब इतना कहा जुल दिया ऐसा शिकनू ने। ते जदों ये किया ते अपने मत्थे ते उन्होंने त्योड़ियां पा लियां। दो वड्डे साहिबजादियां ने पेशानी पे बल डाले परेशान शिकनू ने, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का दुख सी। थेची बजबी लहरिया शीशे में पड़ी थी, माथे पे पसीना था या अफशा सी जड़ी थी। ते इवें लग रहा सी कि बहादुरां दे मत्थे उत्ते पसीना आ रहा है उस बीरस दे नाल। इवें लग रहा सी कि आसमान तो बख्शिश दियां कड़ियां वरस रहीआं होण उन्हां दे चेहरे उपर, ते उस बीरस दे विचों उस अकाल पुरख दी जोत प्रगट नजर आ रही सी। क्योंकि उन्होंने इस धरती तो उस सुरत नूं, उस मरी हुई जमीर नूं खत्म करना सी जिसने इंसानी दिलां दे विच नफरत ते ईर्खा ते दवैत भर दिता सी। क्योंकि गुरु जदों आउंदा है धरती ते, ਉਹ अकाल पुरख दा दैवी प्यार ते नियम लैके आउंदा है, जिहदे विच सारी इंसानियत नूं, सारी कायनात नूं, कुल धरत नूं, कुल ब्रह्मंड नूं ਉਹ बन दिंदा है अपने प्यार दे नाल। ते अगली गल योग च लिखदे ने कि हुण इधरों सिंह बीरस दे विच ने, इधरों साहिबजादे बीरस दे विच ने। फिर की हुंदा है कि जदों किते अग लगी होवे तो कोई पानी लियावे, किसी नूं प्यास लगी होवे कोई पानी दे देवे, किसी नूं ठंड लगी होवे कोई गर्मी दे देवे, ते किसी नूं जख्म लग्या होवे कोई मलम दे देवे। इवें सिखां नूं गुस्सा, जोश, बीरस पूरे जोबन ते सी। पर उन्हां दे नाल कौन सी? इतने में मुखातिब हुए सतगुरु गुरु गोबिंद। एवें लग रहा सी कि हनेरे दे विचों चंद बाहर निकल आया है। इतने में मुखातिब हुए सतगुरु गुरु गोबिंद। सिखां दे सामने गुरु गोबिंद सिंह महाराज आण प्रगट होए, आण हाजिर होए। ये उन्हां कोल शांति सी, ये उन्हां कोल चैन दी घड़ी सी, क्योंकि उन्हां दे कोल पूरा गुरसूरा सी। वो साबरो शाकर, वो बहादुर गुरु गोबिंद, वो सब्र करने वाला, वो शुक्र करने वाला गुरु गोबिंद सिंह महाराज। रस्ते में गवा आए थे दो दुर्गुरु गोबिंद। रस्ते दे विच अपने दो छोटे पिसर, दो छोटे बच्चे किते गवा के आ गए सन, ते सारे गम नाल भरे हुए सन सिंह साहिबजादे। पर कौन सी? तत्ती तवी ते बैठ के भी गुरु अर्जन पातशाह ने सीना की। इथों तक कि जहांगीर गर्म हो गया। इवन के साईं मियां मीर जी उस लोह दी तपश नूं महसूस कर रहे सन। पर शांत कौन सी? धन गुरु अर्जन साहिब। इस तरह की चांदनी चौक दे विच कोई होर धर्म है जिस जनेऊ नूं पाउण तो गुरु नानक पातशाह ने इनकार कर दिता,
ਉਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਬੇਗਮ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇ ਪੁਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ। ਐ ਪੂਰੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਸੂਰਜ ਪੂਰਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਹੈ, -40-50 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਪੁਰ ਅਮਨ ਤੇ ਪੁਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ। फरमाए वो सबसे नहीं मौका ये गजब का कि ऐ सिंगो कोई दुख ना करो, कोई शोक ना करो, कोई गुस्सा ना करो, पूरा यही होगा कल इरादा मेरे रब का। कल इसे धरती ते उस पाक परवरदिगार वाहिगुरु दा जिहड़ा इरादा है, जिहड़ा मिशन है, वो पूरा होगा इस धरती ते। उस अकाल दी बख्शिश इस धरती ते उतरेगी। जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, जिहड़े खित्ते विच मैं कहंदा सी कि आना है वो हिस्सा यही है। कल लुट के है जिस जगह से जाना ये वही है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह महाराज धन दौलत असी सिखा कहते हैं कि जिथों कल में लुट के जाना है वो यही चमकौर दी गड़ी है। जिस जाप पे बच्चों को कटाना ये वही है। जिस जगह ते बच्चों दी शहादत देनी है ये वही जगह है। मट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। जिथों मिट्टी विच ठिकाना प्राप्त करना है असी ये वही जगह है। एक मोर्चे में फिर वही सरकार दर आए। ये कह के ओ रब दा रूप गुरु साहिब जी एक मोर्चे में चले गए। जा पहुंचे अकाली वही सतगुरु जिधर आए। अते वो सारे अकाल दी पूजा करने वाले वो परमात्मा जिहड़ा मौत तो परे है, जिहड़ा इस शरीरां दी होंद तो कैद तो परे है, ते उस मनन वाले अकाली भी उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पीछे पीछे तुर पे। जब किले में जा उतरी थी सतगुरु की सवारी। जदों किले दे विच सतगुरां दी सवारी चली गई सी, वाहेगुरु की फतेह तब दिलेरू ने पुकारी। सारे ने गज वज के बुलाया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वो हुमा शेरों का वो आवाज भारी। एवें लग रहा सी कि जंगल दे शेर पूरी अपनी दहाड़ दे नाल चीख रहा है। थर थरा गया चमकौर हुआ जलजला भारी। एवें लग्या कि बाहर कोई तूफान आ गया है। कड़ाके दी आवाज हुई ते पूरा जिहड़ा जगत सी मुगल फौजां दे विच तरथली मच गई। क्योंकि सिखां दी फतेह सी, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ फतेह सी। वो भी अपने गुरु के सन्मुख होके सकते में खुदाई थी तो हैरत में जहां था। सुम दे विच परमात्मा सी शान अरब नरब धुंधुकारा। तरन गगन हुक्म पारा ना दिन रैन न चंद न सूरज सुम समाद लगाएंदा। सकते में खुदाई थी तो हैरत में जहां था। पूरे जहान दे विच जिहड़ी वो हैरत अंगेज जहां हो गया सी। नाराज से हुआ चरख भी साकन ये गुमा था। इवें लग रहा सी कि सारी दुनिया हैरान ते परेशान है। इंज लगता सी कि उस बोले सोने हाल ते वाहिगुरु जी की फतेह दे नारे नूं सुन के आसमान विच घुमण तो रुक गया सी। जिहड़ी ग्रेविटेशन पुल सी आसमान दा वो भी रुक गया सी। इंज प्रतीत हो रहा सी खैमे में किए इस तादह वहीं उठ के किसी ने खड़े होके तंबू खड़े कीते। तंबुआं नूं सजाया। खोली कमर आराम को हर एक जरी ने। हर एक योद्धे ने जरी तो पावा योद्धे ने अपने जिहड़े कमर कस्से पता नहीं किन्ने दिनां तो बन्ने होए सन उन्हां नूं खोल के साइड ते रखिया। रहरास का दीवान सजाया गुरु जी ने। पहले सरसा नदी के कंढे ते आसा दी वार दा कीर्तन ते हुण इन्नी जंग तो बाद इन्ने सिंह विछड़न तो बाद फिर ही गुरु साहिब जी रहरास साहिब दा पाठ शुरू कर रहे ने। मिलजुल कर सरे शाम भजन गाया सभी ने। सारे ने मिलकर उस परमात्मा की भजन बंदगी इबादत की। खाना कई वक्तों में मुयसर ना था आया। कई दिनों के सिंह भुखे सन। पहले तो अनंदपुर साहब दे विच 6-7 महीने का घेरा रहा। 2-2 दिनों तो बाद उन्होंने एक मुठ
ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਟ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹੀ नहीं है, पर शरीर ਨੂੰ तो कुछ ना कुछ खान नहीं देना है। इस शाम भी शेरू ने कड़ाका ही उठाया, ते ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਾਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ थोड़े को होर मरसी पढ़ के फिर समाप्ति करांगे। समा भी काफी हो गया है, 9 ਅਸੀਂ पढ़ लेने, 15 तक पूरे करके फिर समाप्ति करांगे। कुछ लेट गए खाक पे जी पोश बिछाकर। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਨ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਕਾਠੀਆਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਵਿਛਾकर। ਜੀ ਪੋਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘੋੜੇ ਦੇ ਜ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦੇਨੇ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾकर, ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾकर ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। गोविंद पी, गुरु गोविंद पी शब्बाश हुए खैमे में जाकर। ते सतगुरु अपने खैमे दे विच गए, उत्थे जाके आराम कीता। देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। सिखां ने नजर मारी तो ओ दो जहान दे वाली गर्दन नूं झुका के उस रब दे शुक्र विच बैठे हुए। वाहिगुरु वाहिगुरु है मुंह से निकलता, ते उन्हां दे मुंह दे विचों केड़ी लिव ते केड़ी तुम चल रही है? वाह गुरु वाह गुरु है तू ही तू है मुंह से निकलता कि ऐ परवरदिगार ऐ वाहिगुरु तेरे सिवा इत्थे होर कोई नहीं, बस तू ही तू है। जब 1.5 घड़ी रात गई जिक्र खुदा में। ते इन्नी थकान तो बाद भी पूरी 1.5 घड़ी जेड़ी सी ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਖੈਮੇ ਸੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ਮੇ। ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੈਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਮਾਲਾ ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਠੰਡ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਦਮੋਂ ਸੇ ਟਹਿਲਤੇ ਥੇ ਮਗਰ ਦਿਲ ਥਾ ਦੁਆ ਮੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ हूं खुश तेरी रजा में, मैं बहुत खुश हाँ तेरी रजा दे विच। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, ते एकदम उस परमात्मा ने रूबरू हो गए। क्योंकि सिखां दे गुरु ते परमात्मा विच कोई पर्दा नहीं है। सिखां दा गुरु पार ब्रह्म गुरु नाही भेद, गुरु ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं है। करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲਪੁਰੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੈ ਮੌਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਥੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ रहेंगे मेरे दाता, तेरे ही रहेंगे तेरे ही सन है मेरे दाता जीओ। जिस हाल में रखे तू वही हाल है अच्छा, जिस शुक्र आने का जुबान पर नहीं शिकवा। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਓ, ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੜਕੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਭੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇਥੀ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। लेटे हुए खालसा जी आए जमीन पर, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ थक हार तो बाद जमीन के ऊपर आके सो गए ने। किस तरह से चैन हमें आए शाहे नशी पर। ये इत्थे सोण मिट्टी ते मैं जाके अंदर तख्ते ते सो जावां। हे अकाल पुरख जीओ, मैनू ते अंदर नींद नहीं आउंदी।
ये कह के गुरु लश्करे खुफ्ता में दर आए। ते सुती फौज सी ते गुरु साहब जी बड़े आराम दे नाल टहल टहल के हर एक सिपाही दा सिख दा चेहरा तक रहे ने, ओदे पैर तक रहे ने, ओदे जिस्म नूं तक रहे ने, अपनी उन्हां पवित्र अखां दे नाल। पहरे पे जमा ऊंघ ते अक्सर नजर आए। जिहड़े सिंह पहरा दे रहे सन उन्हां नूं भी नींद आई सी, वो भी ऊंघ रहे सन। यूं हर जगह खामोश गए बेखबर आए। हर एक जगह ते गुरु पातशाह गए ते किसी नूं पता नहीं लगन दिता ते बिल्कुल शांति दे नाल वापस आ गए। सोए हुए बच्चों के करीं जो पिंदर आए। जदों हुण साहबजादे दे कोल लंघण लगे ते उन्हां दे करीब आ गए। गर्ज गर्ज के दबे पाहूं टहलने लगे सतगुर। भाव ਇਹ ਸੀ कि बिल्कुल ਜਦੋਂ नींद ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਮੇ ਮੁਰੀਦੂ ਕੀ ਬਹਿਲਨੇ ਲਗੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੈਰਾਗੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਰਸੀ ਆਸਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਫੇ ਕਭੀ ਸਿੰਘੂ ਕੀ ਉਠਾਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਫੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਮਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। सतगुरु ने दुमाले उठाए, साफे उठाए ते सिंगा ने सिर रखे। केस उसके जो झाड़े तो ली खाक उसकी जबी से। ते किसे सिंह दे सतगुरु ने केस साफ कीते ते किसे दे मस्तक तो जिहड़ी ओ गर्द गुबार सी ओ साफ कीती ते ओदे मस्तक तो एवां हाथ छुआया सतगुरु ने। सर ठीक किए सरके हुए बालिश जी से। ते सिखा ने जिहड़े घोड़ियां ने काठियां दे तकिए बनाए सन ओ सिद्धे कीते। सर ठीक किए सरके हुए बालिशे जी से। किसी का सिर ठीक किया तरतीब दी हर चीज को ला ला के कहीं से। किसी दे दुमालियां नूं, किसी दे चोलियां नूं, किसी दे पैरां नूं साफ किया, किसी दे केसां नूं साफ किया ते हर एक नूं ऐ प्यार दे नाल सतगुरां ने समाया। हाशा किसी मुर्शिद में असयार नहीं है। इन्ना प्यार ते सत्कार कदे किसी मुर्शिद दे विच नहीं देखिया, कदे किसी होर पीर पैगंबर दे विच नहीं देखिया। ये प्यार किसी पीर में जिनहार नहीं है। इन्ना प्यार हरगिज भी किसी होर पीर दे विच नहीं है। दो कुछ शायर होर आ गए ने साडे मरसीए दे इत्थे समाप्ति करांगे। थे देखते हर एक को दीदाए तरसे। अपनी नम अखां दे नाल ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, क्योंकि उल्फत ਦੀ जगह सी। सिखां दे नाल गुरु ਨੂੰ अथाह प्यार सी। उल्फत की निगाहों से मोहब्बत की नजर से, मोहब्बत भरियां नजरां नाल देखदे सन हर एक सिख ਨੂੰ। बांधे हुए पटका पे खिदमत थे कमर से। बांधे हुए कि उन्होंने की कीता सी कि लोक सेवा विच लक बन के जुटे हुए सन, क्योंकि ਸਿੰਘਾਂ ने भी अपने कमरां ਨੂੰ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। था जागता कोई तो सरक जाते थे थर से। जो किसी अख खोलते सी ते सतगुर पिछे सिर दे वाल हो जाते सन। नफरत थी यहाँ तक शहबाला को रिया से। वड्डे शहनशाह नूं दिखावे तो नफरत सी। गुरां नूं तां इह भी नहीं चंगा लगदा कि कोई देखे कि मैं सिखां नूं प्यार कर रहा हां। नेकी को छुपाते थे सदा माओ शमा से। वो चाहुंदे सी कि इह जिहड़ी मेरी नेकी है, इह जिहड़ा मेरा प्यार है सिखां दे नाल, इह मेरे तक ही सीमित रहे। जिन सिंगू ने कल मौत के साहिल था उतरना। जेड़े खालसे ने कल जाग के मैदान जंग में शहीद होना सी। कल सुबह था दिन खालसों ने जंग में मरना। बाली से शहीदों के हुआ जब के गुजरना। जदों इस जगह तो हुण सतगुरु अगे नूं चलन लगे, मुश्किल हुआ इस जा से कदम आगे को धरना। हुण इत्थों सतगुरां लई कदम अगे वाल जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि उन्होंने वार वार देख रहे सन कि कल मेरे सिंघां ने शहीद होना है। चूमा कभी हलकुम, कदे किसी सिंह दे सतगुरां ने गाल चुमे। दहन चूमने बैठे, कदे किसी दा मत्था चुमिया। जब पायती आए, जदों पैरां वल दी आए तो चरण चूमने बैठे। किसी सिंह दे सतगुरां ने प्यार भी चुमे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जीओ। इस नो कलगीधर पिता जिन्हां ने अपने सिंघां दे चरनां तक चुमे, उस मिट्टी नूं नमस्कार कीती जिहड़ी उन्होंने मैदान जंग विच कल जाना सी।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਰ ਪਲ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਲ ਆਪ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੌਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਥਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਰਸਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਓ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸਾਂ, ਬਖਸ਼ੋ ਭੁੱਲਾਂ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਸੰਗਤ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।